we calculate this term, we can directly put it into here. Okay. And also for the logarithmic test, we have this log test, limit n tends to infinity n into log u1 by u1 plus 1 minus 1, and see whether the value of L is, if it is, in both the cases it is greater than 1, then converges. In both this case, this is equal to L, equal to L. If L is greater than 1, then converges. L is less than 1, diverges, and equal to L, 1 test fails. So for the calculation purpose, if we apply this formula, it will be helpful to directly substitute the value of u1 by u1 plus 1 into these further two tests, Rabies test and log test. Okay. The slight change is that in this case, if the value of L is less than 1, then we call it as convergent. When it is greater than 1, then it is called divergent. In this slight substitution, if the value of L is greater than 1, in this new definition, we call it as convergent and so on. Okay. Pragya Sharma. Yes. So please go one slide back. हाँ हाँ अभी वहां पे जा रहे हैं. यहाँ पर क्या कहते हैं? Is this clear for all of you? We have used this Rabies test till now. This one. Now I am introducing this so that we can use directly this step into the next two tests. Okay. The three examples you have written in the previous slide, so that UN form is from this example only. Yeah. The form which you have, the three examples which you have written here, and then you have written. हाँ तो इसमें से तो कोई भी एक वहाँ पे नहीं है ना, मतलब वो अलग है. क्या अलग है? The one which you were explaining, the one ratio test जो आप अभी बता रहे थे. हाँ. UN plus 1 by UN equals to L, और नीचे में एक था UN plus 1 UN by UN plus 1 minus 1. हाँ. तो वो वाला तो इसमें नहीं होगा ना. हाँ यहाँ पर नहीं होगा, वो मैं ये बता रहा था. देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने ये वाला टेस्ट अप्लाई किया है. ठीक है. इसमें क्या है कि न्यूमरेटर में इस तरह से है, इसको सिंपली स्विच कर रहे हैं और डेफिनेशन को बस खाली पलट रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग रेबिस टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट में अप्लाई कर सके, इसलिए क्योंकि देखो सेम यही टर्म हमें यहाँ मिलता है और सेम यही टर्म हमें यहाँ मिलता है जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है फर्दर टेस्ट के लिए. ओके. वहां उसको उस प्रॉब्लम में उसे अप्लाई नहीं करना है. यस सर. ओके. अनमोल कुमार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बोलो बाबू. सर यहाँ सर लॉगरिथमिक टेस्ट में सर यहाँ पे -1 नहीं ना होगा सर? अच्छा. सॉरी जल्दी बात हुई थी. यहाँ पे -1 नहीं होगा, लेकिन ये टर्म ये कॉमन है. ठीक ना. थैंक यू फॉर द करेक्शन. मनीषा कुमारी. सर वही सेम क्वेश्चन था लॉग टेस्ट वाला में जो -1 था. ओके ठीक है. ठीक. थैंक यू. सो ये तीनों टेस्ट में हम लोग ये सेम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u1 by u1 plus 1 इसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. इन so if we calculate this, the final value will come to infinity, which is greater than 1. So that is, this is convergent series. In the first case, you can easily calculate this. Similarly, in the second case also, let me write the general term for this
un is equal to 1 by 2 to the power n minus 1 plus 1 and un plus 1 will be 1 by 2 to the power n plus 1. Okay, this is a very important step to write the nth term first, and if you calculate this also, the final limit will be un by un plus 1. It will came up to 2 and it is greater than 1, therefore it is convergent. This also. I suppose you can do the rest of the calculation in this step. Mainly you have to focus on the nth term so that the further calculation should not be wrong. Similarly, in this question also, what should be the nth term? For this problem, un is equal to n square into n plus 1 square divided by factorial n, and similarly un plus 1 is equal to n plus 1 whole square n plus 2 whole square divided by factorial n plus 1. Okay. Here also, if we calculate this limit un by un plus 1, this will come up to infinity, and therefore it is convergent also. So all these three series are convergent. Okay. So let's proceed with some of the next examples. This is an exercise. Test for the convergence for the series n square plus a divided by 2 to the power n. Sorry, this is n cube plus a, and this is factorial n summation factorial n 2 to the power n divided by n to the power n. Okay. In both the cases, the answer is convergent, and this is also convergent. Use the test that I introduced. In both the cases, this is an exercise. Both the series are convergent. Here we have already given the nth term in both these cases. Okay, so it will be very easy. Now let's see one example. Summation square root of n by square root of n square plus 1 into x to the power n. This is the infinite series. And now the nth term is same as it is. It is n by n square plus 1 x to the power n, and n plus 1 is equal to n plus 1 by n plus 1 whole square plus 1 x to the power n plus 1. Okay, so un by un plus 1 will be square root of n by n plus 1 n square plus 1 plus 2 by n square plus 1
into 1 by x. You can write this as square root of 1 by 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n, 2 by n square by 1 plus 1 by n square into 1 by x. So if we put the limit, all these terms will be 0, which is this tends to infinity. Un by un plus 1 is equal to 1 by x. If we substitute this limit in this, every term which has n in the denominator, it will be 0. So we will left with this. So now, if 1 by x is greater than 1, then it is convergent. When 1 by x is less than 1, it is divergent. And when 1 by x is equal to 1, implies for x equal to 1, it is test phase. Okay. Suppose there is no confusion up to till now. Now further, with this ratio test, we got the result up to this, but for x equal to 1, for x equal to 1, the ratio test fails. So we will look for x equal to 1, the nth term will be look like n by n square plus 1. Okay. Here we will substitute for the nth term, we will substitute x equal to 1 here. So now, in this case, the nth term will be this, and similarly, you can write n square 1 plus 1 by n square is equal to 1 by root n, 1 by 1 plus 1 by n square. Okay. Now we can apply here the limit form of comparison test and consider this Vn as 1 by square root of n. Okay. So that our limit n tends to infinity, un by Vn, this term will be cancelled out in both of them. This is un by Vn. So in the numerator it is this 1 by root n, 1 by square root of 1 plus 1 by n square, and divided with 1 by root n, it will cancel out and came up to 1. And this is non-zero finite number. So that this is the limit form of comparison test. Okay. So we consider this Vn. Why? This is a very intuitive कि अगर हम लोग इस nth टर्म में हमारे पास ये मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम टर्म है. So we will consider the Vn as the same, so that it will cancel out and the limit will be existing and it is giving us 1, which is a non-zero finite number, and we can apply this limit form of comparison test. So now, as we know, this C is 1 by n to the power half, which is this. For p is less than 1, here p is equal to half, it is divergent. This implies our series summation even is also divergent. Okay. Is there any question in this?
मनीषा कुमारी, यस सर। सर वो फाइनाइट नंबर जो आया उसके बाद एक बार फिर से बताइएगा। देखो Divergent. हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट नंबर ये लिमिट आना चाहिए un by p। तो अब क्या है कि according to the limit form of comparison test, the nature of this series and our series will be same, मतलब कि अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो वो भी डाइवर्जेंट होगा। सो हमें पता है कि फॉर ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो p सीरीज टेस्ट था summation 1 by n to the power p, this is convergent for p is greater than 1 and it is divergent for p is less than 1, okay, or less divergent for p is less than or equal to 1। इस रिजल्ट को अप्लाई करने पे देखें कि हमारा जो bn सीरीज हम लिए थे ये डाइवर्जेंट है क्योंकि p is less than half है, ठीक है। सो अब ये डाइवर्जेंट है, this implies our series is also divergent, okay। यस सर। फिलहाल Hello, sir. हाँ ये प्रीति, Sir, please go back to the previous slide in which you wrote 2 questions. I couldn't wrote it down. this one, No, just previous, before it. okay। This one, sir. Just 1 minute. Okay, sir. Thank you. Okay. So, I suppose there is no conclusion in this calculation. Firstly, we applied the ratio test and further this limit form of comparison test, and we came into the conclusion that for x equal to 1 it is divergent, okay। Now let's see another example. Now, summation n by n plus 1 to the power n square, or we can write this as summation 1 plus 1 by n to the power minus n square. Okay, these are both the same after some minor calculation we can see. So as we have this n in exponent, if n in exponent term, we will apply nth root test, okay। So our nth term is n by n plus 1 to the power n square कमल हाँ equal to the power 1 by n. This is equal to n by n plus 1 to the power n टूट गया इतना। likewise this is n plus 1 by n to the power minus n implies 1 plus 1 by n to the power n भेज रहा। to the power minus 1. So if we apply this limit at n to infinity in un to the power 1 by n, रुक मम्मी भेजेंगे क्वेश्चन आंसर चलेगा तब। तो e सर नहीं तो पार कर देंगे। to the power minus 1 which is equal to 1 by e, and it is less than 1. Therefore, by this partial test, this is convergent. Okay.
Yes, unknown Kumar. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सर, जहाँ पे सर n ये UN/UN+1 टेस्ट फेल हुआ था सर, हाँ, सर उसके बाद रेफ टेस्ट नहीं लगा सकते थे सर? उसके बाद क्या? रेफ टेस्ट सर? नहीं समझे नहीं, क्या पूछ रहे हो? रेशियो टेस्ट? नो सर, रेविस टेस्ट सर। हाँ, रेबिस टेस्ट में ये लास्ट। तो उसके बाद लगा सकते थे ना सर? हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो रहा है तो रेबिस टेस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन देखो, जितने भी सारे हमारे पास टेस्ट हैं वो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हम लोग ये भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मतलब तुम्हारे पास समझो कि कोई काम करना है और तुम्हारे पास अगर मान लो 6 हथियार है, ठीक है। Yes, sir. हम लोग एक एक करके सबको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज है कि अगर वो जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो 6 हथियार है उन सबको Yes, sir. रखना पड़ेगा बस। सर लेकिन सीक्वेंस में सर रेविस टेस्ट और इसमें सर पहले ये लगाएंगे सर? हाँ, पहले इसको भी लगा सकते हैं या फिर रेबिस टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। So I suppose there is no confusion in this analytic test also. We have already discussed such type of problem earlier also. Now for this analytic test, this is an exercise. Examine this convergence or divergence of this series. 2 to the power 2 by 1 to the power 2 minus 2 to the power 2 by 1 to the power minus 1 plus 3q 2q minus 3 by 2 to the power minus 2 4 to the power 4 3 to the power 4 minus 4 by 3 to the power minus 3 plus 1. Okay. Here also, as this exponent, if we calculate the nth term, this will be n plus 1 by n to the power n plus 1, this first term, and minus n plus 1 by n to the power minus n. So as this n in exponent, we will apply this root test. Okay. So this is the general term. It is very straightforward. In the first term, it is 2. So it is n plus 1. It is 1, so it is n to the power 2. Means देखो, पहले term में 2 है, फिर power 3 है, फिर 4 है. So that's why this exponent term is n plus 1. The second term is simply 2 by 1, so it is n plus 1 by n. And the exponent is raising as minus 1, minus 2, minus 3, so it is minus n. Okay. Now you can apply this root test and find easily the convergence or divergence of this series. Limit n tends to infinity, un by e power 1 by n, it will came up to 1 by e minus 1, which is less than 1, so it will be convergent. Rest of the calculation you can do. You have to put 1 by n to the power 2, so this will be minus 1. After minor calculation, you will see it will came up to 1 by e minus 1. Okay. And the value of this is less than 1, so it is convergent.
Okay. Let's see some another example. For this series 1 by 2 plus 1 3 by 2 4 1 3 5 by 2 4 6 and like that. So this UN will be 1 3 5 dot up to 2n minus 1 divided by 2 4 6 up to 2n, and similarly UN plus 1 will be 1 3 5 UN minus 1 UN plus 1 2 4 6 UN UN plus 2. Okay, so if we calculate this limit and tends to infinity, UN by UN plus 1, this will be, all the terms will cancel out. We will left with only 2n plus 2 by 2n plus 1. Only these two terms will left, and rest of all the terms will be cancelled out. And from this we can write it as 2 plus 2 by n, 2 plus 1 by n is equal to 1 as n tends to infinity. So we applied this ratio test and it is equal to 1. So this is test fail. So further we will use the same term in our further test as n limit n tends to infinity n into UN by UN plus 1 minus 1 n times, which will be UN plus 2 UN plus 1 minus 1. Further it is limit n tends to infinity. So 2 will be cancelled out. 2n minus n by 2n plus 1. So it will be something n by 2n plus 1 is equal to 1 by 2 1 by n. So this limit will be half, which is less than 1. So that's why by Rabi's test the series is divergent. Okay. Earlier we have applied this ratio test and it is aimed to be 1. So this test is failed. So we apply this further test, and as we have used this term UN by UN plus 1, the exact same term we can substitute here also, which is this 2n plus 1 by 2 by 2n plus 1. And after calculation it is aimed to be half. By the result of this Rabi's test, it is divergent. So, last question for today. Exercise. Discuss the convergence for this x by 1 plus 1 by 2 x cubed by 3
plus 1 into 3 by 2 into 4. X will be for 5 by 5. 1, 3, 5 by 2, 4, 6. X will be for 7 by 7. For X is greater than 0 given to test. कमलेश विश्वकर्मा। यस सर। हाँ, बोलो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे सर लेस देन 1 था तो उसमें कन्वर्जेंट आप लिख दिए थे, लेकिन इसमें हाफ है वो भी लेस देन 1 है तो इसमें डाइवर्जेंट क्यों लिख दिया? रेबिस टेस्ट में तो ग्रेटर देन उसके कन्वर्जेंट ही है। यहाँ पे लेस देन 1 है इसलिए डाइवर्जेंट है। यस सर, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी 1 by e minus 1 वो भी लेस देन 1 था तो उसमें आप कन्वर्जेंट लिख दिए क्यों? ये इसको लिए रूट टेस्ट था। अच्छा एनएफ रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। एनएफ रूट टेस्ट का डेफिनेशन में देखो क्या है। देखो रूट टेस्ट में देखो रूट टेस्ट में लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है। यस सर। अच्छा हाँ सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सॉरी नहीं ठीक था, कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका डेफिनेशन देखो एनएफ रूट टेस्ट में क्या है कि अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, अगर ठीक है एनएफ रूट टेस्ट में डाइवर्जेंट L है, if it is less than 1 then it is convergent, when L is greater than 1 it is divergent and equal to डाइवर्जेंट। test। ये nth रूट टेस्ट है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट ही होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि अगर हम उस वाले डेफिनेशन को सिर्फ चेंज कर दिए ना तो बाकी सारा रिजल्ट सेम रहेगा, सिर्फ nth रूट टेस्ट का ये पलटा होगा बस। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। So tell me anyone the nth root for general term for this series? What should be the general term? As this numerator is increasing in these odd numbers, so it will at the nth term it will be 2n minus 1. The denominator is increasing in even numbers, which is up to 2n, and the exponent is x to the power 2n plus 1 odd number 1, 3, 5 and likewise. Similarly, this is 2n plus 1. This is the general term. So apply this ratio test. You can write this also. Un by un plus 1. This will be at the end. It will give up to 1 by x square. Okay. After calculation, and this will be convergent. 1 by x square is greater than 1. 1 by x square is less than 1, divergent. And when x 1 by x square is equal to 1, test fails, means when x square equal to 1. Okay. And further, we put x square equal to 1 in this series. Then we select it and x equal to 2. For x square equal to 1,
n into un by un plus 1 minus 1. The Rabies test, this will be 4 del un plus 2 un plus 3 divided by un plus 1 whole square. Into n minus 1. This is the term. You can calculate here. I directly calculated this and give the final result. It will be 1 by x square. But the value of this un by un plus 1 will be this. And after calculation, you will see this will be came up to 3 by 2, which is greater than 1. So by Rabies test, this will be converted. Okay. You can do the calculation afterwards. This the limit will be 3 by 2. So Kundan Kumar. Sir, I am asking that in this question we have ignored first term, na? Am I right? Ignored first term. Yeah. इसमें अगर फर्स्ट टर्म में अगर n equal to 1 पुट करें तो क्या होगा 1 2 minus 1 1 आ गया कोएफिशिएंट भी यहाँ पर अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो इग्नोर नहीं करना है और n equal to 1 न्यूमरेटर तो ठीक है 1 आएगा डिनोमिनेटर में देना चाहिए इधर में ये जो कर रहा है और n equal to 1 ये कर पा रहा है हाँ तो इसको मतलब एक तरह से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को मतलब एक तरह से हटा रहे हैं तो मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म इसमें इंक्लूड कर रहे हैं बाकी यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है कमलेश विश्वकर्मा यस सर कोई क्वेश्चन है सर वहाँ पे आप जैसे f के पावर 1 है 3 है 5 है 7 है ऐसा है ना तो आप जनरल टर्म में जो un लिखे हैं वहाँ पे होगा f के पावर 2n minus 1 तब जाके un एक जनरल क्या बोलते हैं वो सही होगा मतलब f के पावर 2n minus 1 क्योंकि सर वहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं फर्स्ट टर्म के लिए तो वहाँ पे 3 हो जाता है जबकि 2n minus 1 अगर रहेगा वहाँ पे तो अगर n1 equal to 1 n equal to 1 डालने पर 1 आएगा और 2 डालने पर 3 आएगा हाँ नहीं तो वही बोल रहे हैं जैसे हम n equal to 1 जो है वो हम यस सर इस वाले टर्म को एक तरह से हटा देंगे यस सर नहीं आएगा तो देना बच्चा समझ पड़ गया उसको देना तो कर ले ऑनलाइन हाँ देना तो कर देता है वो पुराना है विजय कुमार विजय वांग यस सर सर ये n इक्वल्स टू 0 नहीं डाल सकते सर 0 तो पे आ जा रहा फर्स्ट टर्म x equal to 0 अगर पुट करेंगे तो देखो नहीं होगा क्योंकि n डेरिवेटिव इक्वल्स पुट करेंगे ना तो ये इनफिनिटी हो जाएगा अच्छा यस सर यस ठीक है तो इसीलिए फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा अनमोल कुमार सर वो x का पावर बस 2n minus 1 कर देंगे तो हो जाएगा सर फिर n equal to 1 से सर
2n minus 1 अगर करते हैं यस सर, तब हो जाएगा सर। x का पावर अगर 2n minus 1 प्लस सर 2n माइनस फिर भी n इक्वल टू 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो एलिमिनेट करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, ठीक है सर। इसीलिए ठीक है। हाँ सर। Okay, so this is the last official class for this infinite series, or the syllabus is completed. So if you do have any problem, you can ask in the Google Classroom only. Okay, and after 2 minutes, I will start the CS and IT class. So rest you can leave the meeting. सर अब मैथ्स का ऑफिशियल क्लास नहीं होगा सर? हाँ, अब ऑफिशियल क्लास नहीं होगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम भी अगर मैक्सिमम जो गूगल क्लासरूम में मैक्सिमम पूछा जो जाएगा, सिर्फ उसी को ही किया जाएगा एंटरटेन, ठीक है? अगर वो अगर पूछते हैं तो द सिलेबस इज कंप्लीटेड टिल नाउ। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास सर वही सर, मतलब कि अप्रैल के बाद ही होगा? हाँ, वो अगले सेमेस्टर में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 30 तारीख को आप लोग का एग्जाम होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो सकता है। मे बी आप लोगों को मिला हो जेयूटी का जो नोटिफिकेशन है फॉर द सर बोले कि असेसमेंट बेस्ड आएगा सर? हाँ, वो असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा 24 घंटे में। कुछ क्वेश्चंस का सेट आप लोग को दिया जाएगा जिसको कि आप लोग को सबमिट करना है 24 आवर्स में ऑनलाइन, और अदरवाइज 48 आवर्स में ऑफलाइन सबमिट करना है, तो वो होगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। जो भी गाइडलाइंस आता है एंड सेमेस्टर के लिए। ओके, प्रियंका शर्मा। सर अगर ऑनलाइन होगा तो असाइनमेंट सबमिट करना है ना, एग्जाम नहीं होगा, और ऑफलाइन होगा तो हाँ, वो जो भी गाइडलाइंस है जेयूटी का वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है? और सर अभी बीच में आप कोई लोग क्लास प्रिपेयर रहिए। लास्ट है क्या? मैथ्स का, भी लास्ट था ना, इसके बाद और कोई क्लास नहीं होगा? नहीं, रिपीट बाबू। मैथ्स का ये लास्ट था ना इस सेमेस्टर के लिए, इसके बाद और कोई क्लास नहीं रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, इसके बाद अगर ये क्लास कंटिन्यू हो सकता है, सिर्फ प्रॉब्लम सेशन होगा। अगर आप लोग गूगल क्लासरूम में अगर कुछ प्रॉब्लम पूछते हैं तब कभी मतलब कि कोई टाइम दे करके कि हाँ इस दिन में जो आप लोग का स्लॉट है सेम उसी स्लॉट में प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा बस। लेकिन इट इज कंडीशन अप्लाइड कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है? और वो भी मतलब कि सिर्फ अभी 4 तारीख है, नेक्स्ट फ्राइडे तक में अगर आप करते हैं, नेक्स्ट मंडे या फ्राइडे तक में। ओके ओके, नाउ मनीषा कुमारी। यस सर। सर इसमें जो फर्स्ट वाला टर्म आप एलिमिनेट किए हैं तो उसको पूरा क्वेश्चन से एलिमिनेट कर देंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कन्वर्ट? इससे पहले हम 2-3 रिजल्ट्स बताए थे कि अगर हम किसी भी सीरीज से अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा देते हैं तो उसके नेचर ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? अगर किसी भी सीरीज में एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म में, तब भी उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के 2-3 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है? यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को हटा दिया है। फाइनाइट मतलब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म को हटा रहे हैं ताकि हमारा ये जो टर्म है वो एडजस्ट हो जाए। और सर वो जो 48 आवर्स में सबमिट करना रहेगा तो सर मतलब 24 आवर्स ऑनलाइन हो गया, अगर उसमें नहीं सबमिट हो पाया तब नेक्स्ट 24 हार्ड कॉपी यहाँ पे कैंपस में आके सबमिट करना पड़ेगा 48 घंटे में। अच्छा, उस टाइम के बाद से 48 आवर्स काउंट होगा? टोटल 48 आवर। अच्छा, एग्जाम स्टार्ट होने के मतलब कि वो ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होने के 24 घंटे के अंदर सबमिट करना है, अदरवाइज 48 घंटे के अंदर सबमिट करना है। ठीक है? ओके सर। प्रीति लता। सर तो फिर मतलब जो भी अब मैथ्स का नेक्स्ट क्लास है वो अप्रैल के बाद ही मतलब स्टार्ट होगा, मई में ही? हाँ हाँ। और सर वो जो एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा? तो देखो जिस तरह का डिसीजन होगा, जिस तरह का भी स्थिति है, फिर से कोरोना का सेकंड फेज जो है स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से ऑनलाइन ही होने का मोस्ट प्रोबेबल चांस है। ठीक है? मोहम्मद अदनान। ओके सर। मनीषा कुमारी। सर हो गया डाउट? ओके, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे and all the best for the for your final examination. After 2 minutes I will start the CS and IT class. Okay.
Anyone? Vijay? Yes, sir. Anyone from CSIT branch? Yes, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's continue with the class. Firstly, one of you among have asked me some question. Yes, Subhash Kumar Yadav. Yes. Yes, sir. So, Subhash has asked me some problems. A and 10 of this exercise. Okay, the notes that I provided. So, firstly, this question 6. I hope you already have gone through this exercise 4.1, problem 6. It says B is a real vector space. B is real vector space means B is a vector space over real over field R. And U, V, W belongs to this vector space B such that U plus V plus W is equal to 0. It is theta. Theta is the identity. Okay. Theta. So theta is the identity of this R. So vector space D. Additive identity. So then we have to show this linear span of UV. Show that equal to linear span of PW, linear span of W. I will just give you the hint for this problem. अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमारे पास U और W तीन वेक्टर्स हैं और इन तीनों का सम जो है अगर 0 के बराबर है, थीटा का मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जनरली रियल के केस में 0. सो अगर ये 0 है, कहने का मतलब U plus V plus W is equal to this identity. तो एक तरह से देखो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 into U, 1 into V, 1 into W is equal to 0. तो थीटा आइडेंटिटी. और you can write U is equal to or W is equal to minus 1 into V plus minus 1 into U. ठीक है, कहने का मतलब कि W को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. किसके? W can be written as the linear combination of of U and V with this coefficient -1 and -1. लिख सकते हैं. कहने का मतलब कि W will belong to the linear span of U and V. Linear span का मतलब क्या बताए थे? Set of all vectors such that मतलब it is a subspace, minimum possible subspace generated by these two vectors U and V. ठीक है, and because of this combination this W will belong to this subspace. And similarly एक एक करके हम लोग अगर देखेंगे तो U और V का जो सबस्पेस हो, कहने का मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि because of this statement U plus V plus W equal to 0,
ये हमारे पास कहने को तो 3 वेक्टर्स हैं, these are 3 वेक्टर्स, but these all belong to a plane, means a 2-dimensional space. अगर u और अगर v को लेते हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं c1 into u plus c2 into v, this is the linear combination which represents this plane, and thus w is also in this plane. Okay, is this clear? Subhash? Yes sir, yes sir. Okay, so Yeah. मतलब क्या है कि अगर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि the linear span of u and v जो होगा इससे क्रिएट होगा c1 and c2 belongs to this real number, तो प्लेन जनरेट होगा, w उसी प्लेन पे है, मतलब क्या है कि u v और w are linearly dependent. Clear? अगर ये linearly dependent है तो हम लोग कह सकते हैं w will belong to this linear span of u and v. Similarly, इसके केस में हम कह सकते हैं कि belong to linear span of v and w and similarly, और ये तीनों स्पेस कॉमन होगा, मतलब ये दो स्पेस जो है this will be the space with dimension 2. Okay, and therefore further हर एक के केस में ये कर सकते हैं linear span of them u and w is equal to linear span of understood? Yes sir. Now the next question, 4.1, question number 8. Express this vector 1, 2, 5 as a linear combination of the vectors 1, 1, 1, 2, 1, 2, and 3, 2, 3. ठीक है, सो हमें क्या करना है, सिंपली ये कन्वेंशन को 1 2 5 टाइम्स 1 1 1 प्लस 3 टाइम्स 2 1 2 प्लस 3 टाइम्स 3 2 ठीक है, एंड वी कैन सिंपलीफाई इट एज a plus 2b plus r equal to 1, equating the first term of every first tuple in this. Secondly, a into 1 plus b plus 2c is equal to this 2. थर्ड टर्म के साथ करेंगे तो क्या होगा, a plus 2b plus 3c equal to 5. Okay, अब हमें क्या करना है, we have to find a b c और उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, so we can write this vector as a linear combination of these 3 known vectors. Okay, so let's try this. इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, so it will look like 1 2 3 1 1 2 1 2 3 a b c equal to right side is 1 2 5. ठीक है, now this is in the form of ax equal to b, where b is non-zero means it is a non-homogeneous linear system of equation. So इस तरह के सिस्टम में अगर हमारे पास अगर ये consistent होगा, there are two cases. If it is consistent, only it is possible to find ABC only it is consistent. So consistency कैसे चेक करते हैं इस तरह के सिस्टम में? For these type of systems, ax equal to b, we write augmented matrix a, b, and a. We calculate the rank of this matrix. If rank of this augmented matrix a, b is equal to rank of a, then only it is consistent. Okay, so इस केस में देखो, इस मैट्रिक्स में if we write this r1 is equal to r3 is equal to r3 minus r1. Okay,
सो क्या होगा देखो 1 2 3 1 2 3 ये दोनों घट जाएगा तो यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पर 5 minus 1 this will be 4. Okay, so after this operation R3 is equal to R3 minus R1. We will left with 1 2 3 0 0 0 in this augmented matrix 1 2 4 and then with the middle term will be 1 1 2 1 1 2. ठीक है, सो देखो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दिस इज द रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ दिस ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसका थर्ड रो जो है वो 0 है, तो इसमें मतलब कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन की इसका रैंक आ रहा है कितना, इसमें एक और कर सकते हैं इसका टोटल एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो इसका ए का रैंक जो है वो है 2 और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो 3, so this is not equal to, so it is inconsistent, so we cannot write this vector into this linear combination. Okay, Subhash? Yes, sir. Now the next problem, examine whether 3 minus 4 6 is spanned by the vectors. Same question like this: A 1 2 minus 1, B 2 2 1 plus C 1 minus 2 3. ठीक है, हमें क्या करना है कि स्पैन का मतलब क्या कह रही है? Examine whether this vector is spanned by these 3 vectors or not. ठीक है, span का मतलब क्या है कि इस वेक्टर को मतलब span का सेम मीनिंग है कि we can able to write this vector in the linear combination of these 3 vectors or not. ठीक है, so हम लोग टेस्ट करते हैं पहले इस स्टेटमेंट के साथ, सेम हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली इन द सिस्टम. So it will be like A B C. In the right hand side it will be 3 minus 4 6 and in the left hand side A जो है तो कितना होगा 1 2 minus 1. ये जो है ये इसके कॉलम्स में आ जाएगा क्योंकि A के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, B के साथ ये तो 2 2 1 and third is 1 minus 2 3. If we do the exercise of elementary row transformations, ये हमारे पास ये जो आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस A B is equal to rank of this A is equal to 3 and so it is consistent. और फर्दर इसको सिंपलीफाई करके सिंपली हमें A B C का वैल्यू फाइंड करना है. सो इज इट ओके सुभाष? Yes, sir. इसका कर सकते हो, ये कंसिस्टेंट है बेसिकली. यहाँ पे सिंपली A B C का ऑलरेडी ये एक्सरसाइज जो है तुम लोग मॉड्यूल 3 मैट्रिसेस में कर चुके हो. Yes, sir. हो जाएगा. निकालना है और यहाँ सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर Okay. ये we can able to span this vector in this linear combination और ये इसका आंसर यस होगा और प्रीवियस वाले में नो होगा. सो ठीक. any other further question? सर लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पेन में क्या अंतर है सर? लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन, देखो ये जो तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है सिंपली कि अगर हम किसी एक वेक्टर को a1 u1 plus a2 u2 an u1 ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन. किसी एक वेक्टर को हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, ओके सर. यस. और स्पैन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये सारे वेक्टर्स हैं u1 u2 un, so this linear span of this u1 u2 un will be a subspace of
our vector space. This is linear span. और ये खुद में क्या है? Vector space. It is a subspace of the original vector space. बात समझ में आया? ये मतलब कि ये linear span क्या हुआ? ये पूरा का पूरा मतलब एक तरह से सबस्पेस हुआ, जो कि एग्जैक्टली इसको जनरेट करेंगे कैसे? इसी लीनियर कॉम्बिनेशन से ही आएगा। ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर लेते हैं एक प्लेन में और ये R3 है, मान लो R3 ओवर R है, इसमें दो वेक्टर है u एंड v, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं u और v का, सो au प्लस v, और जैसे जैसे a और b को हम लोग चेंज करते जाएंगे हमको पूरा का पूरा ये मिलेगा प्लेन। यस सर। ठीक है, सो अब देखो यहाँ जो लीनियर स्पैन ऑफ u और v हुआ, यही बेसिकली ये सबस्पेस हुआ प्लेन R3 का। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये जो चीज हुआ स्टेटमेंट कि हम किसी भी वेक्टर w को w कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस u एंड v लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, और इस ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस को मिला करके हम सबस्पेस जनरेट कर रहे हैं। यही बस डिफरेंस है बेसिक। ठीक है, यस सर। okay, now let's proceed further to the linear transformation. So every one of you, if you do have any problem, you can ask in the Google Classroom particular questions up to this basis dimension, linear combination, span, vector space field. If you do have any problem, you just ask in the Google Classroom. I will discuss it here, as Subhash Kumar Yadav has already asked me these three questions. So linear transformation is defined as let V and U are two vector space over same field F, then the mapping T from V to U is said to be linear, is linear transformation or linear mapping if first T of x plus y is equal to T of x plus T of y, and second T of Cx is equal to C times T of x. This is for every xy belongs to V, and this is for every C belongs to the field and x belongs to the, for all x belongs to V. देखो इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सिंपल, जैसे हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, जो ये कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए इनिशियल टॉपिक, सेम वही फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू U। हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, V ओवर F और U ओवर F। ठीक है, तो V जो है एक तरह से क्या है? डोमेन है, अगर रिजेंबल करे तो, और U जो है वो क्या है? कोडोमेन। ठीक है, T हमारा फंक्शन हो गया। इसी फंक्शन को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। फंक्शन को समटाइम्स वी कॉल इट मैपिंग आल्सो। सो अगर हमारे पास ये फंक्शन है, तो अब फर्दर दो कंडीशन है, और ये डेफिनेशन है लीनियर का। लीनियर का हम लोग ऑलरेडी एक चीज देखे कि अगर इस तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, देन वी कॉल एनीथिंग लीनियर। सो यहाँ पे इन दिस केस इट इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू U, और इसको लीनियर कब कहेंगे? जब किसी भी दो वेक्टर का एडिशन अगर हम कर रहे हैं डोमेन में, मतलब कि V में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है U में, मतलब T of x will be in U and T of y will be in U, इन दोनों का एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हम डोमेन में अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो वेक्टर्स हैं जो इसकी इमेज होंगे, उसका एडिशन के बराबर होगा। और दूसरा फॉर एवरी
दिस इज सेज दैट फॉर एवरी टू वेक्टर्स, अगर इसके v के हर एक दो वेक्टर के लिए क्या है, इस तरह का स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। दूसरा कि अगर हम किसी फील्ड के कांस्टेंट को लेते हैं c और फॉर ऑल वेक्टर x बिलोंग्स टू u, अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है t of cx equal to c टाइम्स, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग होगा t वो क्या है, वो लीनियर मैपिंग है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सो इफेक्टिवली इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, दिस इज v over f, this is u over f, and we have a transformation t from this u to v। यहाँ पर हमारे पास x, y, z इस तरह के एलिमेंट है, correspondingly यहाँ पे t of x, t of y, t of z इस तरह का एलिमेंट होगा। ठीक है, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हमारे पास दोनों में अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और उस पे t अप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी t of x प्लस t of y। ठीक है, और फील्ड का अगर ये दोनों का फील्ड कॉमन है, t of cx इज इक्वल टू c टाइम्स t of x, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so let's see some examples. So let us suppose T is a mapping from R3 to R3, defined as T of x1, x2, x3 is equal to x1 0 0। इसका फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने नोट्स में दिया है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक तरह से इस वेक्टर को मैप कर रहा है सिंपली इसमें। ठीक है, सो वी अप्लाई दिस टेस्ट whether this is a linear transformation or not। so let x equal to x1 x2 x3, y is equal to y1 y2 y3। so t of x plus y is equal to t of क्या हो जाएगा, x1 plus y1 x2 plus y2 x3 plus y3, और जब हम t अप्लाई करेंगे दिस डेफिनेशन, दिस विल कम अप टू x1 plus y1 0 0। you can write this as x1 0 0 plus y1 0 0, and again you can write ये जो डेफिनेशन इसके रिवर्स में जाता है कि दिस इज t of x1 t of x and this is plus t of y। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होता है। सिमिलरली हम लोग चेक कर सकते हैं कि t of cx equal to c times txt होगा। ठीक है, so this is a linear transformation as it is satisfy these two conditions। Till now any question? Raise your hand if you do understand this concept of linear transformation, or if you have any problem you can ask। Anyone? Subhash? Yes sir। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, आगे सर। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। सो एक चीज है कि हमारे पास अगर कोई भी इस तरह का अगर मैपिंग का हम लेते हैं t from any t to u, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर हो ऑलवेज। जब ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा तभी हम इसको लीनियर करेंगे। फॉर एग्जांपल इस बुक पे ये एग्जांपल है नोट्स में, अगर हम t को ऐसे डिफाइन करते हैं t from r3 to r3 defined as t of x1 x2 x3 is equal to x1 plus 1 x2 x3। so this will be not linear transformation।
ये आप लोग चेक कर सकते हैं और सॉल्व एग्जांपल भी है इसमें। बिकॉज ऑफ दिस वन, जब हम लोग p ऑफ x प्लस y निकालेंगे तो जो वन आएगा वो एक के साथ हो पाएगा, y के टर्म में नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली इसको भी चेक कर सकते हैं, t फ्रॉम R3 to R defined as t of x, y, z equal to x square plus y square plus z square. This is also not linear. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और देखो, जब भी नॉन लीनियर प्रूव करना है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर है तो हमें सिंपली एक काउंटर एग्जांपल निकाल के दे सकते हैं कि अगर जैसे कि इस केस में देखो उसमें है कि t ऑफ, for this example t of x y z equal to x square plus y square plus z square, ये हम इस तरह से हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि मतलब कि लीनियर नहीं है। प्रूव करने के लिए 1 1 0 and 0 1 1 belongs to R3। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं, काउंटर एग्जांपल to this to P is not linear। ठीक है, so this t of 1 1 0 will be 2 and t of 0 1 1 will also be 2, simply 1 square plus 1 square equal to 2 और इस तरह से। but t of x plus y, मतलब ये दोनों वेक्टर को अगर लेते हैं 1 1 0 plus 0 1 1, so it will be t of 1 2 1 and this is equal to 1 square plus square plus 1 square equal to 6, and therefore it is t of 1 1 0 plus 0 1 1 is not equal to t of 1 1 0 plus t of 0 1 1। ठीक है, इसका हमारे पास कितना आ रहा है, ये 4 6 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करेंगे ये 2 plus 2 and इधर आ रहा है 6, so it is not equal, so we can directly call this linear transformation, this mapping is not linear। now there is a problem इस तरह का आ सकता है कि find the linear transform, find the linear transform which maps from R2 to R2 such that अगर B पे अगर हम एक वेक्टर को अप्लाई कर रहे हैं 2 minus 1 it gives 1 comma 1 and T of minus 1 1 gives 2 comma 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि we have this vector space R2 over R and this mapping is given R2 over R। ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर है 2 minus 1 और एक वेक्टर है minus 1 1। इसका जो फर्दर यहाँ मैपिंग आफ्टर मैप है ये जो है वो 1 1 है और ये जो है वो 2 3। ठीक है, तो हमें t का डेफिनेशन निकालना है, मतलब क्या कि t of x y जो होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं डोमेन के 2 minus 1 और minus 1 1, ये दोनों हमें शो करना पड़ेगा कि ये दिस इज it will form it will be a basis of R। बेसिस पहली बात, ये जो डोमेन के दोनों वेक्टर हैं ये दोनों जो है ये दोनों मिल करके
ये पूरे के पूरे R2 को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर ये प्रूव करने की लीनियरली इंडिपेंडेंट है और 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए हमारे पास 2 वेक्टर है, तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा। और बेसिस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली we will take the linear combination a into 2 minus 1 plus b into minus 1 1 is equal to 0 0 और देखेंगे कि a और b दोनों 0 हो रहा है क्या। तो दिस इज 2a minus b equal to 0 and minus a plus b equal to 0. So इस सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखिए कि कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 minus 1 minus 1 1 a b equal to 0. ये देखो जो डिटरमिनेंट अगर इसका निकालेंगे -2 -1 -1 1, this is equal to 1 which is non-zero, ठीक है। सो इसका जो ये मतलब क्या है कि ये फुल मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक है वो 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 2 है। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट a equal to 0 and b equal to 0, which is the requirement for our, this is the only solution for this linear system. So अगर हमारे पास इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर कोएफिशिएंट 0 आ गया तो मतलब कि दोनों वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात कि 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए 2 वेक्टर अगर हमारे पास है, सो इसके बेसिस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होने चाहिए। सो these 2 vectors will form a basis for this R2, ठीक है। नाउ अगर हम ये प्रूव कर दिए कि ये दोनों जो वेक्टर है 2 minus 1 and minus 1 1 for basis for R2, then any vector x y belongs to R2 can be written in linear combination of these 2 vectors 2 minus 1. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं x y is equal to sum a into 2 minus 1 plus b into minus 1. Okay, which is equal to 2a minus b minus a plus b x y. ये बात समझ में आए कि हम लोग बेसिस को क्यों प्रूव किए, क्योंकि अगर हम इसके बेसिस प्रूव करते हैं तो हम किसी भी वेक्टर को इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई भी जनरल वेक्टर अगर x y लिखते हैं तो उसके जनरल इसके फॉर्म में लिखते हैं और हमारे पास कोएफिशिएंट जो है a और b अननोन है, ये a b आर अननोन। ओके, सो we can write this as 2a minus b equal to x and minus a plus b equal to y. And further, if we simplify this, a is equal to x plus y and b is equal to x plus 2y. ये दोनों का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। And then we can write this as this x y is equal to first coefficient x plus y into this first vector 2 minus 1 plus second coefficient x plus 2y into this minus 1 y. मतलब कि हम हर एक वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं जिसका कि कोएफिशिएंट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दिस वेक्टर ओनली। नाउ अब क्या है कि if we apply t on this x y is equal to
x plus y 2 minus 1 x plus 2y minus 1 1. If we apply this t, then t of xy is equal to linear transformation है तो ये coefficient as it is अब बाहर आ जाएंगे t of 2 minus 1 plus x plus 2y t of minus 1 1, and by definition we can substitute the value of these, which will be x plus y into 1 1 plus x plus 2y into 2 3 by the given definition of in this problem. So this will become x plus 2x, it will be 3x plus y 5y and 4x plus 7y. So t of xy will be this. Okay. Any question in this problem? To find the definition of this mapping, if we have given two vectors, we can by this calculation, we can find the definition of this linear transformation. Any doubt? Subhash. सर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो टी लगाए राइट हैंड साइड में, तो x प्लस वाई और x प्लस 2y में क्यों नहीं लगा? देखो, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था याद है? अगर हम यहाँ पे ax plus by करें और ये अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो a t of x हो जाएगा और प्लस b t of y हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ओके सर, ठीक है, ये देखो मतलब a और b जो है वो क्या है, हमारा फील्ड एलिमेंट, जो वेक्टर स्पेस के कॉमन फील्ड एलिमेंट है, और वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ गया। तो इस वजह से यहाँ से यहाँ जब आए तो ये हमारा x प्लस वाई बाहर आ गया, क्योंकि ये जो है ये भले इससे कैलकुलेट हुआ है, ये हमारा फील्ड एलिमेंट और ये भी हमारा फील्ड एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर आ गया। ओके सर, हमको गिवन है कि ये t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस वजह से। ठीक है, यस सर, ठीक। एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, एक v है ओवर अ फील्ड, u है ओवर अ फील्ड, वी डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो वेक्टर होता है और यहाँ पर इसका एक जीरो वेक्टर होता है, इसको मानते हैं जीरो डैश। ठीक है, सो अगर देखा जाए कि अगर हम t का जो मतलब कि अगर t जो है वो मतलब कि इसका एक जीरो वेक्टर जो भी होगा, यहाँ पे अगर t अप्लाई करते हैं तो t ऑफ जीरो यहाँ का एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब इसका जीरो वेक्टर पे t अप्लाई करता है तो ये यहाँ का होगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम देखो, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस p, तो इसका जीरो इस पे मैप होगा, मतलब इसका जो जीरो है वो मतलब जीरो डैश, इसका जीरो उसके पे मैप करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स जैसे x y ऐसे, इसमें भी जब अगर हम p लगाएं तो वो सेम इसी के अप्लाई होगा, जीरो डैश p ऑफ। ठीक है, इसको भी मैप करेंगे इसी पे है, मतलब कि एक सबसेट एलिमेंट इस v का जो कि इस पे अगर t अप्लाई करते हैं तो अगर हम जीरो वेक्टर दे, इसको हम लोग कहते हैं कर्नल ऑफ t। ठीक है, कर्नल ऑफ t का मतलब क्या हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स इस कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू set of all elements v belongs to this vector space domain such that p of v is equal to
0 डैश। बात समझ में? Anyone raise your hand? Anyone raise your hand? गौरव सोनकर एंड सुभाष, आप लोग दोनों अभी अनम्यूट करके रखें, ठीक है? इसको क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव अगर नहीं करेंगे बिट्टू कुमार, अगर इंटरैक्टिव नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये सिंपली मैपिंग है, ठीक ना? यहाँ पे हम कर्नल ऑफ टी क्या है, ये एक तरह से सबसेट है किसका? बी का। ओके एनीवन? यस ओके सर। ठीक है, जो ये कर्नल ऑफ टी है वो क्या है? बी का सबसेट है, ठीक है? और इसको यहाँ इसमें किस तरह के एलिमेंट है? वो सारे बी के एलिमेंट है, वेक्टर्स हैं, जो कि अगर टी ऑफ बी लगाए तो हमको इसका मतलब कि 0 एलिमेंट देगा है, ठीक है? फर्दर हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो कर्नल ऑफ टी है, पहली बात तो ये इसका सबसेट है, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये इसका सबस्पेस भी बन जाएगा। मतलब क्या होगा? दिस कर्नल ऑफ टी सबस्पेस ऑफ, सबस्पेस के लिए सिंबल है लिखा है ऐसे बी। मतलब पहली बात तो ये कर्नल ऑफ टी इसका सबसेट है, और बाद में प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका सबस्पेस है। मतलब कि पहली बात तो 0 इसमें है ही, और प्लस ये जो है खुद में एक मतलब कि सबस्पेस होगा, ठीक है? दिस इज सबस्पेस। अब फर्दर एक और बात देखते हैं, ये हमारे पास बी है और यू है, ठीक है? ये एक तरह से फंक्शन के फॉर्म में देखें तो ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन। यहाँ ये टर्म यूज नहीं करते हैं, डोमेन और कोडोमेन यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये एक तरह से बी और इस तरह से है, फंक्शन के फॉर्म में करते हैं। अब अगर इसका टोटल इमेज अगर यहाँ पर आए और ये इसका सबसेट हो, दिस इज इमेज ऑफ टी, ठीक है? इमेज ऑफ टी। सो इसके सारे एलिमेंट्स जो है x, y, z सब पे अगर हम लोग इस तरह से डॉट 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 टी को अप्लाई करें तो यहाँ पर p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z इस तरह करते इसके सारे एलिमेंट अगर एग्जॉस्ट हो जाए और ये जो हमारे पास रेंज मिले, एक तरह से रेंज क्या है? फंक्शन के केस में इसे हम कहते हैं रेंज। सो ये जो रेंज मिले अगर ये u का सबसेट हो, ऑब्वियसली u का सबसेट होगा क्योंकि u पूरा का पूरा कोडोमेन है, तो इसे हम कहते हैं इमेज ऑफ टी। ओके, सो दिस इमेज ऑफ टी is defined as set of all u belongs to u is codominic elements such that p of b is equal to u for some b belongs to b। ये मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कैसे कि ये सेट ऑफ ऑल u एलिमेंट्स है such that there exists a v in this domain such that कि हम लोग इसको p of b equal to u लिख सकते हैं for some b in this domain। so this is image of t। okay, अब देखो ये जो image of t है ये सबसेट है u का। okay सुभाष? यस सर। तो इसको फर्दर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस इमेज ऑफ t will be subspace of what? u। image of t will be subspace of u। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है। पहला चीज तो है कि ये हमारा इसका सबसेट है और ये सबसेट जो है इसको फर्दर हम लोग सबस्पेस का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। और सबस्पेस का डेफिनेशन क्या करेंगे? अगर उसके कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है सबस्पेस का, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सबस्पेस होगा। तो इन दोनों डेफिनेशन में एक चीज देखो, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कर्नल ऑफ टी जो है वो v का सबसेट है फर्स्टली। सेकेंडली वी विल फर्दर प्रूव दैट दिस कर्नल ऑफ टी विल बी सबस्पेस ऑफ दिस डोमेन। एंड सिमिलरली इमेज ऑफ टी जो है क्या कर रहे हैं कि फंक्शन के कन्वेंशन में कह सकते हैं कि दिस इमेज ऑफ टी इज द रेंज ऑफ दिस मैपिंग एंड इट विल बिकम द सबस्पेस ऑफ u। सो हम इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, दिस कर्नल ऑफ t will be subspace of d over f
and image of T is subspace of U over. ये एक तरह से क्या है, डोमेन है और ये डोमेन है. Okay, any confusion? No, sir. Okay. So in the next class we will discuss about, और हाँ देखो अगर ये मतलब इसका स्पेस है तो इसका अपना एक डायमेंशन होगा. डायमेंशन ऑफ दिस कर्नल ऑफ T is called nullity and dimension of image of T is called rank. क्योंकि ये खुद में अगर ये सबस्पेस है तो इसका अपना मतलब कि क्या होगा, बेसिस होगा, इसका अपना एक डायमेंशन होगा. सो इसका जो डायमेंशन है कर्नल ऑफ T का, इसी को नलिटी कहते हैं. और डायमेंशन ऑफ दिस इमेज जो कि सबस्पेस है हमारा कोडोमेन का, इसे कहते हैं हम रैंक. ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. So in the next class we will discuss some problems related to this and the very important theorem that is called rank nullity theorem. Okay. Okay, sir. And after 2-3 minutes, Professor Ghanshyam from the physics department will continue your class. Pulkit Aryan, do you have any question? Pulkit Aryan. Gaurav Sonkar. No, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Yes. Pulkit. सर पूछना चाह रहे थे सर. गुड मॉर्निंग सर. सर morning. नेक्स्ट क्लास जो वो 10-15 से होगा कि वो पहले होगा सर? देखो हाँ, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 9:30 से होगा, क्योंकि जो बाकी सारे ब्रांचेस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है. आप लोग का थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसमें. तो इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 onwards for CSIT students. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Anyone else? Okay, so this is all over for today. After 2-3 minutes, Professor Ghanshyam from Physics Department will continue with you people.